السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال هل آمنکم علیہ الا کما امنتم علی اخیہ من قبل فاللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت الیہم قالوا یا ابانا ما نبغی هذه بضاعتنا ردت الینا ونمیر اہلنا ونحفظ اخانا ونزداد کیل بعیر ذلك کیل یسیر قال لن ارسله معكم حتى تؤتونا موثقا من الله لتأتونني به الا ان يحاط بكم فلما اتوه موثقهم قال الله على ما نقول وکیل۔ الحمدللہ تدبر قرآن کی آج ہماری کلاس نمبر 230 ہے، جس میں سورہ یوسف کی آیت نمبر 64 سے 74 آپ کے سامنے انشاءاللہ ذکر کی جائے گی۔ پہلے کی آیات میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام خواب کی تعبیر اور اپنے علم کی بنیاد پر جیل سے نکال دیے گئے، انہیں زمین کا ذمہ دار بنا دیا گیا، خزانچی بنا دیا گیا، مال کا لینا دینا، لوگوں کو کیسے غلہ تقسیم کرنا، یہ سارے کام وہ کرنے لگے۔ بھائیوں کا ان کے پاس آنا، بھائی ان کے پاس آ رہے ہیں، یہ سارے معاملات اللہ رب العالمین آگے ذکر کرے گا۔ اللہ رب العالمین نے آج کی آیات میں جو چیزیں ہمارے سامنے ذکر کی، سب سے پہلے ان آیات کا ترجمہ۔ قَالَ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمِنْتُمْ عَلَىٰ أَخِيهِ مِنْ قَبْلِ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب ان سے کہا کہ تمہارا ایک اور بھائی ہے، اسے بھی لے کر آنا تو تمہیں ایک بار اور زیادہ سامان ملے گا، اپنے ابا سے انہوں نے بات چیت کی، حضرت یعقوب سے بات کی کہ آپ ہمارے ساتھ بنیامین کو بھی اس بار بھیج دو، اگر وہ جائے گا تو زیادہ سامان ملے گا۔ جب یہ کہا تو ابا نے انہیں کیا جواب دیا؟ جب ان لوگوں نے کہا کہ دے دو، ہم ان کی حفاظت کریں گے، اچھے سے لے کر جائیں گے، تو کہا کیا میں تم پر ویسے ہی بھروسہ کروں جیسے اس سے پہلے اس کے بھائی کے بارے میں بھروسہ کیا تھا؟ یعنی یوسف کو بھی تم یہی بول کر لے کر گئے تھے اور بولا بھیڑیا کھا گیا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہترین حفاظت کرنے والا اور سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، یعنی میں تم پر نہیں، اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں اور اللہ پر بھروسہ کر کے اسے بھیجتا ہوں۔ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ، اور جیسا کہ میں نے پچھلی آیات میں بتایا تھا کہ حضرت یوسف نے ان کا مال بھی ان کو ریٹرن کر دیا تھا، واپس بھیج دیا تھا، تاکہ یہ دیکھ کر وہ اپنے بھائی کو لے کر آئیں۔ جب سامان کھولا تو دیکھا کہ پیسہ اور سامان بھی ریٹرن ہو گیا ہے، تو کہا اے ابا جان اب بتائیے اس کے بعد اور کیا ہوگا؟ کیسا بادشاہ ہے وہ، کیسا ذمہ دار ہے وہ کہ انہوں نے تو ہمارا پیسہ بھی ریٹرن کر دیا ہے، ہذہ بضاعتنا، یہ ہمارا پیسہ ہم کو لوٹا دیا ہے، ونمیر اہلنا ونحفظ اخانا، تو آپ ہمارے ساتھ بھائی کو بھیج دو، ہم سامان بھی لے کر آئیں گے، ان کی حفاظت بھی کریں گے، اور ہمیں ایک اونٹ کا سامان ایکسٹرا مل جائے گا، یعنی ایک بھائی زیادہ تو ایک اونٹ کا سامان زیادہ مل جائے گا۔ ذالک کیل یسیر، اور یہ تو بہت ہلکا سا سامان ہے، بہت ہلکا وزن ہے، یعنی ابا جان آپ انہیں بھیج دو، ان کو بھیجنے سے ہمارا فائدہ ہوگا اور اس کے ذریعے ہمارا کام آسان ہو جائے گا۔ قال لن ارسله معكم حتى تؤتونا موثقا من الله، اب حضرت یعقوب نے کہا میں تمہارے ساتھ تب تک نہیں بھیجوں گا تب تک کہ تم مجھے پکا وعدہ نہ کر لو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ تم ضرور اس کو لے کر آؤ گے، سوائے اس کے کہ کوئی ایسی بات ہو جائے جس کی تمہاری طاقت ہی نہ ہو، قدرتی بات ہو جائے، کوئی مسئلہ ہو جائے تو بات الگ ہے، ورنہ لے کر آؤ گے۔ فَلَمَّا أَتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ، جب ان لوگوں نے وعدہ دے دیا تو وعدہ لینے کے بعد حضرت یعقوب نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے بولے پر ذمہ دار ہے، جو تم بول رہے ہو نا اس پر اللہ وکیل ہے، اللہ تعالیٰ ذمہ دار ہے۔ وَقَالَ يَا بَنِيَّ لَا تَدْخُلُوا مِن بَابٍ وَاحِدٍ، اب یہاں پر حضرت یعقوب نے ایک ہیلا بتایا اور ایک ہیلا اپنایا اور کہا کہ اے میرے بچوں جب تم وہاں پر جاؤ تو ایک دروازے سے ایک ساتھ داخل مت ہونا۔ اب سوچیے آپ، جب یوسف اتنے خوبصورت ہے تو باقی بھائی بدصورت تو نہ رہے ہوں گے، وہ بھی خوبصورت رہے ہوں گے، تو کہا 11 کے 11 ایک ساتھ خوبصورت انٹری مت کرنا، ورنہ کیا ہوگا؟ مقصد کیا تھا؟ ان کے دل میں ایک حاجت تھی کہیں نظر نہ لگ جائے، کہیں کچھ ہو نہ جائے، تو کہا تم لوگ الگ الگ دروازے سے جانا۔ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، میں تم کو اللہ تعالیٰ سے بے نیاز نہیں کر سکتا، یعنی اللہ نے اگر کوئی فیصلہ کیا ہے تو وہ ہو کر رہے گا، لیکن یہ ایک بات ہے جو باپ کے اعتبار سے وہ کہہ رہے ہیں، ان الحکم الا للہ، فیصلے سارے اللہ کے لیے ہیں، علیہ توکلت، میں اس پہ بھروسہ کرتا ہوں اور اسی پر بھروسہ کرنے والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے، یعنی بھروسہ اللہ پر مکمل ہے۔ پھر اس کے بعد بھی میں کہہ رہا ہوں کہ تم دروازے الگ الگ اپنا لینا۔
वलम्मा दखलू मिन हैथु अमरहुम अबूहुम, और जब वो उस एतबार से दाखिल हुए जैसे उनके अब्बा ने उनको हुक्म दिया था, मा कान युगनी अन्हुम मिन अल्लाहि मिन शै, और अल्लाह की तरफ से ये चीज बेनियाज करने वाली नहीं थी, लेकिन एक हाजत थी हजरत याकूब के दिल में जो उन्होंने अपने बच्चों के सामने रख दी। और यकीनन वो इल्म वाले हैं जो हमने उनको इल्म दिया, लेकिन अक्सर लोग इस बात को जानते नहीं हैं। यानी हजरत आका याकूब ने जो ये अमल किया था ना कि एक गेट से मत जाना, ये उनका इल्म था, भरोसा अल्लाह पर था पर उनका इल्म था। वलम्मा दखलू अला यूसुफ, और जब वो यूसुफ के पास दाखिल हुए, आवा इलैहि अखाह, उन्होंने अपने भाई जो सगा भाई था बिन्यामीन, उनको अपने पास बिठा लिया और उन्हें यह खबर दिया कि मैं तुम्हारा भाई हूं, मायूस मत हो इनके अमल से, यानी जो इन्होंने किया था ना टेंशन मत लो, जो भी ये कर रहे हैं टेंशन मत लो, मैं तुम्हारा भाई हूं, मैं यूसुफ हूं। यानी उन्हें सुकून अता किया, उन्हें सुकून दिया, अपने पास में बिठाया। फलम्मा जहज़हुम बिजहाज़िहिम, और जब भाइयों ने अपना सामान लाद लिया तो अब एक और रास्ता, एक और मसला यहां पर था कि हजरत यूसुफ को अपने भाई को अपने पास रोकना था। अब रोके कैसे, उसके लिए एक हीला अपनाया। तो जब सामान पैक हो गया तो वो बर्तन जिससे तोल तोल कर सामान दिया जाता है, उस बर्तन को बिन्यामीन के सामान में छुपाने का हुक्म दे दिया कि बिन्यामीन के सामान में उसे छुपा दो। सुम्मा अज़्ज़ना मुअज़्ज़िन, उसके बाद ऐलान करने वालों ने ऐलान करके कहा कि काफिलों वालों तुम चोर हो, तुम चोर हो। अब ये सब सामान पैक हो गया, निकलने लगे, जाने लगे, तो ऐलान किया गया कि तुम चोर हो, उन भाइयों की तरफ इशारा करके कि तुम चोर हो। तो उन्होंने कहा कालो वाक़बलू अलैहिम माज़ा तफ़क़िदून, उनकी तरफ टर्न होकर, उनकी तरफ देखकर कहा कि तुम्हें क्या नहीं मिल रहा है, क्यों तुम हमको चोर कह रहे हो। कालो नफ़क़िदु सुआल मलिक, हमें बादशाह का जो बर्तन है वो नहीं मिल रहा है, और जो उसे लेकर आएगा उसको एक ऊंट का सामान दिया जाएगा। वाना बिही ज़ईम, और मैं इस पे जिम्मेदार हूं। यानी अगर मेरा बर्तन ढूंढ कर दिखाओगे, मैं इनाम में तुम्हें एक ऊंट अता करूंगा, एक ऊंट का इनाम तुम्हें दिया जाएगा। कालू, यानी ऊंट के बराबर, यानी ऊंट के ऊपर जो सामान आता है, जो गल्ला आता है, उतना सामान तुम्हें दिया जाएगा। कालू तल्लाही, कहा अल्लाह की कसम, लक़द अलिमतुम मा जिना लिनुफ़सिदा फ़िल अर्ज़, तुम जानते हो कि हम जमीन में फसाद मचाने नहीं आए और हम लोग चोर भी नहीं है। कालू, तो हजरत यूसुफ ने उनसे सवाल किया, बताओ फमा जज़ाउ इन कुंतुम कादिबीन, अगर तुम झूठ बोल रहे हो तो बताओ बदला क्या होगा। अगर तुम सच्चे हो मसला कोई नहीं, तुम्हारा सामान चेक होगा, जाओ। और अगर तुम झूठे निकले, वो बर्तन तुम्हारे पास निकला, तो बताओ बदला क्या होगा। कालू जज़ाउ मन वुजिदा फ़ी रहली, तो कहा इसका बदला वही है, यानी उनके एरिया में जहां हज़रत याकूब रहा करते थे वहां पर यही बदला होता था कि जो चोरी करे उसे रख लिया जाए, उसे जेल कर दिया जाए। तो कहा उसका बदला यह है कि जिसके पास मिलेगा वही उसका बदला है, मतलब उसको तुम रख लेना। कज़ालिका नज्ज़ी ज़ालिमीन, इसी तरह हम जालिमों को बदला देते हैं। पर हजरत यूसुफ जहां पर थे मिस्र में, वहां पर यह कानून नहीं था और उन्हें रोकना था भाई को, तो बाकायदा हिला अपनाया कि सजा भी उनसे ही पूछी कि तुम बताओ सजा क्या दी जाए। तो कहा सजा वो है कि जिसके पास मिलेगा उसे तुम रख लेना। फबदा बिअवइयतिहिम क़ब्ल विआइ अख़ी, अब यहां पर फिर एक हिला अपनाया। सबसे पहले भाइयों की चेकिंग हुई और एंड में बिन्यामीन को चेक किया गया। डायरेक्ट चेक करते तो पता चल जाता कोई ना कोई मसला है, एक कुछ ना कुछ तुमने किया है। पहले भाइयों के सामान को चेक किया गया, एंड में उनके वह सामान को चेक किया गया, और जब बिन्यामीन का सामान चेक हुआ, सुम्मा इस्तख़रजहा मिन विआइ अख़ी, भाई के सामान से वो बर्तन निकल गया। कज़ालिका किदना लि यूसुफ, इसी तरह हमने हज़रत यूसुफ को ये प्लान सिखाया। मा काना लियाख़ुज़ अख़ाहु फ़ी दीनिल मलिक, वो बादशाह जहां पर वो रहते थे मिस्र की बादशाहत में, उनको रख नहीं सकते थे सिवाय उसके कि अल्लाह चाहे। हम जिसके चाहते हैं दर्जात को बुलंद करते हैं, और हर इल्म वाले के ऊपर अल्लाह ताला इल्म वाला है। यानी हज़रत यूसुफ के पास जो ये इल्म था ना, अल्लाह कह रहा है वो हमारा इल्म था, हमने उन्हें इल्म दिया था, क्योंकि हर इल्म वाले के ऊपर अल्लाह ताला इल्म वाला है। कालू, अब जब भाइयों ने देखा कि बिन्यामीन फंस गए, सामान उनके पास मिल गया है, तो अपने आप को बचाने के लिए झूठ क्या बोलते हैं। कालू, उन्होंने कहा इन यसरिक, अगर इसने चोरी की है ना तो इसके भाई ने भी इससे पहले चोरी की है, यानी इसका भाई भी चोर था, ये भी चोर, भाई भी चोर। हसद तो था ना, जलन तो थी ना, तो कहा ये नहीं चोर है, इसका भाई भी चोर था, झूठा इल्जाम लगा दिया। फासर रहा यूसुफ फी नफ्सी, अब सोचिए यूसुफ उस वक्त क्या मकाम पर है, उसके बाद भी छुपा लिया, कुछ नहीं बोले, नाराज नहीं हुए, चिल्लाया नहीं, ताकत रखने के बाद भी अपने गुस्से पर कंट्रोल कर लिया, उसको छुपा लिया। वलम युब्दिहा लहुम, उनके लिए दिखाया नहीं। क़ाला अंतुम शर्रुम मकाना, बस कहा कि तुम बुरे मकाम पर हो, यानी बुरा अमल कर रहे हो। वल्लाहु अअलमु बिमा तसिफून, और अल्लाह ताला ज्यादा जानता है उसको जो तुम इल्जाम लगा रहे हो। यानी अपने दिल में कहा कि तुम बहुत बुरे हो और अल्लाह ताला बेहतर जानता है तुम्हारे इल्जामात को। क़ालू
اب جب یہ ہوا کہ بنیامین کو رکھ لیا جائے گا تو بھائیوں کو اپنا وعدہ یاد آ گیا کہ ارے ابا نے تو بولا تھا اس کو چھوڑنا نہیں، اس کو چھوڑیں گے تو مسئلہ ہو جائے گا۔ تو اب ذرا بادشاہ سے بات کرنا ہے۔ قالو کہا یا ایھا العزیز، اے بادشاہ، اے عزیز مصر سنیے، ہمارے ابا بڑے بوڑھے ہیں، ایسا کرو اس کی جگہ ہم میں سے کسی ایک کو رکھ لو، انا نراک من المحسنین، ہم تو آپ کو احسان کرنے والوں میں سے دیکھتے ہیں، یعنی ہمارے ابا جو ہے نا وہ بوڑھے ہیں، آپ ایسا کرو ہم میں سے کسی ایک کو رکھ لو، ان کو جانے دو، اگر وہ چلے جائیں گے تو ابا کو ٹینشن نہیں ہوگا، کسی بھی ایک کو رکھ لو۔ کہا تم تو بڑے احسان کرنے والے ہو، بڑا احسان مند ہو، احسان ماننے والے اور احسان کرنے والے ہو، ایسا کر دو نا ہمارے اوپر احسان۔ پر کیا یوسف نے ان کی بات کو مانا؟ کسی کو رکھا، نہیں رکھا، یا بنیامین کو رکھا؟ یہ اگلے درس میں ہمارے سامنے انشاءاللہ آئے گا۔ یہ ہوا آیات کا ترجمہ، جس میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ کیسے انہوں نے یعقوب کو منایا، منانے کے بعد یعقوب علیہ السلام نے ان کو کیسے بھیجا، انہوں نے انٹری کیسے کی، یوسف نے اپنے بھائی کو کیسے بتایا، روکنے کا طریقہ کیا اپنایا، کیسے سامان میں کیا چھپایا گیا، یہ ساری چیزیں آج ہمارے سامنے الحمدللہ آ گئیں۔ اب مشکل الفاظ، حل آمنکم، شوڈ آئی ٹرسٹ، کیا میں تم پر بھروسہ کروں، جیسے پہلے کیا تھا ویسا بھروسہ کروں۔ نمیر، وی برنگ فوڈ، ہم کھانا لے کر آئیں گے، یعنی اگر یہ جائے گا 10 کو 10 کا ملے گا، 11 جائیں گے 11 کا ملے گا، زیادہ کھانا لے کر آئیں گے۔ کیل بعیر، اے کیملس لوڈ، یعنی ایک کیمل، ایک اونٹ پر جتنا سامان آتا اتنا میں انعام تم کو دوں گا اگر تم ڈھونڈ کے لا دو۔ موثقم مطلب ہوتا ہے پرومس، وعدہ۔ یحاط بکم، یو شوڈ سراؤنڈیڈ، اگر تمہیں گھیر لیا جائے، روک لیا جائے، کوئی مسئلہ ہو جائے تو بات الگ ہے، نہیں تو تم کو اس کو لے کر آنا پڑے گا۔ باب واحد کہا جاتا ہے 1 گیٹ، ایک دروازہ۔ لا تبتئس، ڈو ناٹ ڈسپیر، تو آپ مایوس مت ہو، آپ ٹینشن مت لو، فکر مت کرو جو یہ لوگ کر رہے ہیں آپ کے ساتھ۔ السقایا کہا جاتا ہے گولڈ میزرنگ باؤل کو، یعنی سونے کا وہ برتن جس سے میزر کیا جاتا ہے، تولا جاتا ہے، ناپا جاتا ہے۔ رحل کہا جاتا ہے بیگ کو، سامان جس پر لادنے کا جو بیگ ہوتا ہے بڑا، اسے رحل کہا جاتا ہے۔ تفقدون مطلب ہوتا ہے یو مسنگ، تمہیں کیا نہیں مل رہا ہے۔ قالو، کیا تمہیں قال نفقد، قالو واقبلوا علیہم ماذا تفقدون، تمہیں کیا نہیں مل رہا ہے، کیا مس ہو گیا ہے۔ فاسرھا، ہی کیپٹ اٹ، انہوں نے چھپا لیا، اپنے پاس رکھ لیا، یوسف نے بات کو اپنے پاس رکھ لیا، ان کو رپلائی نہیں دیا۔ شیخن کبیرہ مطلب ہوتا ہے اولڈ مین، بوڑھا آدمی، ہمارے ابا بوڑھے ہیں، اگر آپ ان کی جگہ کسی اور کو رکھ لو، ہمارے ابا بوڑھے ہیں، ہم جائیں گے بتائیں گے وہ ناراض ہو جائیں گے، بوڑھے ہیں، ایسا کرو کسی اور کو رکھ لو۔ یہ کچھ مشکل الفاظ آج کی آیت میں ہمارے سامنے تھے۔ اب ہمارا لاسٹ اور مین ٹاپک ہوتا ہے تدبر۔ نمبر 1، جھوٹ سے پرہیز کرو، اس سے بھروسہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جھوٹ مت بولو، جھوٹ کا استعمال مت کرو، جو صحیح ہے بتا دو، چاہے اس کے بعد آپ پر مسائل آئیں، پریشانی آئے، تکالیف آئے، دکھ آئے، درد آئے، دشمن آئے، پریشانی آئے، آنے دو، پر سچ کا استعمال کرو، جھوٹ کا سہارا مت لو، کیونکہ جھوٹ بھروسے کو توڑ دیتا ہے۔ انہوں نے ایک بار کہا حضرت یعقوب سے جھوٹ، دوسری بار بولنا ہے بھروسہ ہی نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ جھوٹ سے بھروسہ ٹوٹ جاتا ہے، اس سے مومن کو بچنا چاہیے۔ نمبر 2، اللہ سے بڑا کوئی محافظ نہیں ہے۔ اس دور میں اگر مسلمان اپنے عقیدے میں اس چیز کو داخل کر لے نا، سارے ٹینشن ہی ختم ہو جائیں گے، غم ختم ہو جائیں گے، انسان جاسوسی نہیں کرے گا، غیروں کے تلووں تک نہیں جائے گا، غیروں کو اپنا رب نہیں بنائے گا، غیروں کے کاموں میں کھڑا نہیں ہوگا، غیر اللہ کی عبادت، بدعات، خرافات، اینیورسریز، برتھ ڈے کچھ نہیں کرے گا۔ اگر یقین ہو جائے کہ میرا محافظ میرا اللہ ہے، اسی کے پاس جانا ہے، وہی فیصلہ کرے گا، وہی جنت دے گا، وہی جہنم سے بچائے گا، وہی قبر میں آسانی دے گا، کچھ نہیں، دنیا میں کوئی کام نہیں آئے گا سوائے اللہ کے۔ اگر یہ ایمان رکھ لینا، سارے مسئلوں سے نکل جائے انسان۔ ورنہ ہمارے یہاں ہوتا ہے نا، اس کو دکھانا، اس کو دکھانا، اس کو منانا، اس کو منانا، یہ ناراض وہ ناراض، اس چکر میں لگے ہوئے ہیں سارے حرام کرنے کے اندر۔ اللہ سے بڑا کوئی محافظ نہیں۔ اللہ تعالیٰ پر کیا کہا حضرت یعقوب نے؟ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا، اللہ تعالیٰ بہترین حفاظت کرنے والا ہے، اور وہ رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ بات ختم۔ اللہ پر بھروسہ، اللہ پر جب بھروسہ ہوتا ہے نا تو اس سے بڑا کوئی محافظ نہیں ہے۔ نمبر 3، ایک انسان سے 2 بار دھوکہ نہیں کھایا جاتا، جیسا کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا نا کہ مومن لا یلدغ من جحر واحد مرتين، کہ مومن ایک سوراخ سے 2 بار ڈسا نہیں جاتا۔ جیسے ایک آدمی اگر آپ کو دھوکہ دے رہا، آپ کو پتا ہے، ٹھیک ہے آپ بات چیت کرو، سلام دعا کرو، لیکن بار بار دھوکہ مت کھاؤ۔ مومن ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا، ایک انسان پر دوبارہ وہ بھروسہ نہیں کرتا۔ نمبر 4،
माँ बाप से बात करने का अंदाज नर्म होना चाहिए। देखिए ना, यहाँ पर हसद है, पता है सारा मामला, पर बाप से बात कैसे कर रहे हैं, ए मेरे अब्बा जान, ए हमारे अब्बा जान, भरोसा कीजिए, ऐसा करेंगे हम, वैसा करेंगे अब्बा जान। यानी यह अंदाज क्या होना चाहिए, माँ बाप के साथ मोमिन का तरीक़ा क्या होना चाहिए। हमारे यहाँ है फहाश, लआन, बदतमीज़, गलीज़ ज़बान इस्तेमाल करने वाली औलाद, और यहाँ बताया जा रहा है कि माँ बाप से बात करने में आपका अंदाज नर्म होना चाहिए। नंबर 5, माल के ज़रिए हक का काम किया जा सकता है। देखिए, हज़रत यूसुफ ने माल से ही तो काम लिया, माल था, ताकत थी, कुव्वत थी, मर्तबा था, तो उस माल के जरिए उन्होंने काम लिया, माल के जरिए काम लिया ना। माल दे रहे हैं, माल रिटर्न कर दिया, पैसा भी नहीं लिया, गल्ला भी दे दिया। ऐसा जब माल होता है ना इंसान के पास, तो उससे दावत का काम किया जा सकता है, माल के जरिए दीन का काम किया जा सकता है। माल होना जरूरी है, दौलत होना जरूरी है, हलाल माल कमाना, हलाल कारोबार करना मोमिन की जिम्मेदारी है। उससे वो अपने आप को भी मजबूत करेगा और वो दीन के काम को भी मजबूत कर सकता है, जैसे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने किया कि उनको सामान भी दे दिया और पैसा भी रिटर्न रख कर दे दिया। क्यों था, इतना टेंशन नहीं था, वापस उनको रिटर्न कर दिया। नंबर 6, अपनी तरफ से पूरी मेहनत करो और उसके बाद अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा करो। भाई, मेरे हिस्से का काम मुझे करना है, मेरे हिस्से का जो मुझे अल्लाह ने बोला, ये चेक करो, वो चेक करो, मशवरा करो, ये करो, वो करो, उसके बाद अब मैंने कोई काम कर लिया, मुकम्मल अल्लाह पर भरोसा, वो है, वो देखेगा, वो करेगा, वो सब करेगा, पर मेहनत भी पूरी करो और भरोसा भी पूरा करो। हज़रत याकूब ने कंफर्मेशन ली, बातचीत की, पक्का वादा लिया, सारी बात हो गई, उसके बाद बोल रहा है अल्लाह ताला तू मुहाफिज है, अल्लाह तू हिफाजत कर, अपनी मेहनत भी पूरी करो और तवक्कुल भी पूरा करो। हमारे लोगों को तवक्कुल ही नहीं होता, भरोसा नहीं होता, अरे ऐसा तो होगा ही नहीं, मेरे साथ तो अच्छा होता ही नहीं है, मेरा तो चलता ही नहीं। अरे भरोसा करो ना, जब आपने मशवरा किया है, अच्छी तरीके से कोई काम किया, हलाल रोजी से काम किया है, अल्लाह यकीनन मदद करेगा, ये अल्लाह ताला का वादा है, इस पर बंदा मोमिन को यकीन होना चाहिए। नंबर 7, मोमिन को कसम पर भरोसा करना चाहिए। देखिए, पता था कि बेटे झूठ बोल रहा है, उसके बाद भी कसम पे भरोसा कर लिया। कसम अगर अल्लाह की आ जाए ना, अल्लाह का नाम आ जाए ना, तो मोमिन को फिर भरोसा कर लेना चाहिए। अल्लाह भरोसे मामला, अल्लाह सुप्रद मामला छोड़ देना चाहिए। नंबर 8, नजर और हसद से बचने के लिए दिखावे से बचो और दुआएं पढ़ा करो। देखिए क्या कहा हज़रत याकूब ने, ईमान है, तवक्कुल है, भरोसा है, सब कुछ। उसके बाद बोला बेटा एक साथ एक गेट से मत जाना, अब इतने सारे लोग वहां पर हैं और तुम 11 के 11 ऊंचे, पूरे खूबसूरत, गोरे चिट्टे एक साथ जाओगे, लोग तुम्हें देखेंगे, नजर लगाएंगे, तुम्हारे खिलाफ साजिशें कर सकते हैं, तुम्हें बुरा भला तुम्हारे साथ कोशिश कर सकते हैं, इसलिए एक गेट से मत जाना, अलग अलग गेट से जाना। जब तुम डिस्ट्रीब्यूशन तुम्हारे अंदर हो जाएगा, अलग अलग हो जाओगे, पता ही नहीं चलेगा, हर गेट से एक एक आ जाना। क्यों कहा? नज़र और हसद से बचाने के लिए। हमारे यहाँ तो खुल खुल के दिखा रहे हैं, एक गाड़ी खरीदी है 10 बार स्टेटस लगा रहे हैं, मकान लिया 10 बार स्टेटस लगा कर दिखा रहे हैं, छोटी छोटी नेमतें लोगों को दिखा दिखा कर अमल करना है। अरे बहुत सारे ऐसे हैं जिनके पास वो नेमतें नहीं है, उन्हें दिल में तकलीफ होती है, बहुत सारे आप पर नज़र लगाते हैं, बहुत सारों को बुरा लगता है, इसलिए नज़र और हसद से बचने के लिए दिखावे से इंसान को बचना चाहिए। एक तो ये अमल करे और दूसरा नज़र की दुआ भी पढ़े, आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा मिन कुल्लि शैतानिन व हाम्मा व मिन कुल्लि ऐनिन लाम्मा। इस दुआ का भी एहतमाम बंदे मोमिन को करना चाहिए। नंबर 9, कोई किसी के लिए कुछ करने की ताकत नहीं रखता सिवाय अल्लाह के। देखिए ये नबी हमें पैगाम दे रहे हैं, अल्लाह हमें पैगाम दे रहा है कि याकूब ने बच्चों को बोल दिया अलग अलग गेट से जाना, उसके बाद भी बोल रहे हैं कि अल्लाह के सिवा कोई ताकत नहीं है, अल्लाह के सिवा कोई इख्तियार नहीं है। इस कायनात में वही होता है जो अल्लाह चाहता है, वो नहीं होता है जो हम चाहते हैं। अल्लाह ताला के सिवा किसी की मशीयत, किसी की ताकत इस कायनात में नहीं चलती। इस बात पर भरोसा तो रखो ना, इस बात पर ईमान तो रखो ना, अल्लाह ताला पर तवक्कुल तो रखो ना। पर हमारा तवक्कुल कमज़ोर पड़ चुका है, हमारा भरोसा कमज़ोर पड़ चुका है, हम गैरुल्लाह पर, गैरों पर, अल्लाह के सिवा लोगों पर भरोसे कर रहे हैं। अल्लाह के सिवा किसी की मशीयत इस कायनात के अंदर नहीं चलती। नंबर 10, मुसलमान को अपने भाई को अच्छी नसीहत करना चाहिए। यानी अगर आप देख रहे हो कि आपका भाई मुसलमान कुछ कर रहा है, वो गलत कर रहा है ना, अच्छी नसीहत करो, उसे अच्छी बात बताओ, सही बात बताओ, सही एडवाइस दो। हमारे यहाँ तो एडवाइस भी लोग गलत देते हैं कि इसका काम बस बिगड़ जाना चाहिए। रिश्ता पता है कि जिस लड़के से रिश्ता किया जा रहा है वो लड़का अच्छा नहीं है, पर इसलिए करा देते अच्छा है, ये परेशान होगा तब पता चलेगा। कारोबार कर रहा, पता है कारोबार सही नहीं है, अच्छा है करने तो बर्बाद होगा तब पता चलेगा। अपने निजी बदले निकालते हैं। अच्छी नसीहत करो ना, अच्छे तरीके से पेश आओ ना। हज़रत याकूब ने अपने बच्चों को अच्छी नसीहत की, तो इंसान को चाहिए कि अपने मोमिन भाई को वो अच्छी नसीहत करे।
नंबर 11 बड़ा प्यारा पॉइंट है कि इल्म का देने वाला सिर्फ अल्लाह है। इल्म का देने वाला सिर्फ अल्लाह है। अल्लाह ने देखिए यहाँ पर 2 मरतबा इस बात को बताया। एक मरतबा हज़रत याकूब ने जब बच्चों को कहा कि अलग अलग गेट से जाना, अल्लाह कह रहा है कि इनके पास वो इल्म है जो हमने दिया। हज़रत यूसुफ ने जब अपने भाई को रोकने का पूरा प्लान बनाया, अल्लाह ताला उसके बाद बड़े प्यारे अंदाज के अंदर कह रहा है कि वफ़ौक़ कुल्लि ज़ी इल्मिन अलीम, अल्लाह ताला हर इल्म वालों के ऊपर अलीम है। यानी अल्लाह से बड़ा कोई आलिम नहीं, अल्लाह ताला से ज़्यादा कोई जानकार नहीं। इल्म देने वाला सिर्फ अल्लाह। यहाँ पर क्या पता चला कि आलिम को अपने इल्म पर तकब्बुर नहीं करना चाहिए, डॉक्टर को अपने नॉलेज पर तकब्बुर नहीं करना चाहिए, इंजीनियर को अपने इल्म पर तकब्बुर नहीं करना चाहिए। किसी भी फील्ड के अगर आप आलिम हो, आप जानकार हो, आपके अंदर सलाहियत है, तकब्बुर ना करो। कहो अल्लाह ने मुझे इल्म दिया, अल्लाह ने मुझे सलाहियत दी, अल्लाह मेरी ज़बान से बुलवाता है, अल्लाह मेरे दिमाग से सोचने की ताकत देता है, अल्लाह ताला मेरे दिल के अंदर बातों को डालता है, मैं ये कर पाता हूँ, वो कर पाता हूँ। ये सब अल्लाह की तरफ से है। इल्म का देने वाला सिर्फ अल्लाह। कभी अपने नॉलेज पर तकब्बुर ना करो। नंबर 12, अगर एक भाई को अल्लाह ताला माल से नवाज दे तो उसे दूसरे भाइयों का ख्याल रखना चाहिए। हज़रत यूसुफ को अल्लाह ने नवाज दिया तो उन्होंने भाइयों का ख्याल रखा, माल दिया, पैसा रिटर्न कर दिया। ये भाई की जिम्मेदारी होती है कि अगर एक भाई ताकतवर है तो वो दूसरे को देखे। हमारे यहाँ फेसबुक पर ले जाकर, इंस्टाग्राम पर ले जाकर बड़े बड़े सदका खैरात करते हैं। भाई भूखा है, बहन भूखी है, खाने को नहीं है, घर नहीं है, इंतजाम नहीं है, तालीम नहीं है, उस पर खर्च नहीं कर रहे हैं और दिखावे के लिए सारी दुनिया को अता कर रहे हैं। अगर एक भाई ताकतवर है, दूसरा ताकतवर नहीं है, आपकी बहन ताकतवर नहीं है, तो आपको उनके लिए सदका और खैरात करना चाहिए, उनकी मदद करना चाहिए, उनको हेल्प देना चाहिए। जैसे ताकत हो वैसे उनका सपोर्ट करना चाहिए। नंबर 13, गुमी हुई चीज को लाकर देने वाले को इनाम दिया जा सकता है, ये जायज़। अगर कोई सामान आपका गुम गया है और आप ये कह रहे हो कि मेरा ये सामान जो लाकर देगा मैं इसको इतना इतना बदला दूंगा, वो जायज़ है, कोई मसला नहीं। जैसे हज़रत यूसुफ की तरफ से ऐलान हुआ कि अगर कोई लेकर आएगा गुमी हुई चीज़ तो उसे 1 ऊँट के बराबर का सामान दिया जाएगा, 1 ऊँट के बराबर का गल्ला दिया जाएगा। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से हज़रत यूसुफ को इल्म सिखाया गया। हज़रत यूसुफ ने इस इल्म पर अमल किया तो इससे पता चला गुमी हुई चीज़ के लिए इनाम दिया जा सकता है। नंबर 14, जब अल्लाह किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो उसे इल्म की दौलत देता है। अल्लाह अकबर। हमारे यहाँ इल्म वालों को सबसे हकीर समझा जाता है। इसके पास यही कि आलिमी तो है, हाफिज़ी तो है, दीन का इल्म ही तो है। जब अल्लाह किसी बंदे से मोहब्बत करता उसे इल्म देता। अल्लाह ने याकूब से मोहब्बत की, इल्म दिया। अल्लाह ने यूसुफ से मोहब्बत की, इल्म दिया। अल्लाह के नबी का फरमान है, मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन। अल्लाह ताला जिस शख्स के साथ भलाई का इरादा करता है उसे दीन की फ़क़ाहत अता करता है, दीन का इल्म अता करता है। तो अल्लाह ताला जब बंदे से मोहब्बत करता है तो उसे इल्म की दौलत देता है। और इल्म को हासिल करने वाले को आप जानते हो वो कौन है? दीन का इल्म हासिल करने वाला नबी का वारिस होता है। जैसे किसी के दादा ने माल छोड़ा, घर छोड़ा, दौलत छोड़ी, ये छोड़ा, वो छोड़ा, वो वारिस हो गया। इल्म हासिल करने वाला नबी पाक मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वारिस होता है। इससे बड़ा मकाम और क्या होगा कि अगर अल्लाह ने आपको इल्म दिया, हम उलमा को फख्र होना चाहिए इस बात पर कि अल्लाह ने हमें दीन का इल्म दिया। जिस इल्म को आज मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, इतने लोग जो सुनने वाले हैं, चाहे यूट्यूब पर, चाहे ऑडियोज के जरिए, वीडियोज के जरिए, ये अल्लाह ताला ने इल्म दिया, अल्लाह ताला ने चुना। ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है। नंबर 15, इल्म से अल्लाह दराजात को बुलंद करता है। इल्म की बुनियाद पर अल्लाह ताला दराजात, कैटेगरीज दुनिया के अंदर भी और आखिरत में भी बुलंद करता है। आप देखिए ना, हमारे यहाँ इल्म वालों की कितनी अहमियत होती है। और उसको बहुत पता है गाड़ी के बारे में, अरे इसका नॉलेज बहुत अच्छा है मकानों के बारे में, वो डॉक्टर साहब बहुत अच्छे हैं क्योंकि उनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है, उनका नॉलेज बहुत अच्छा है। वो आलिम साहब है ना, उनसे पूछो, उनके पास इल्म बहुत है। इल्म से अल्लाह दराजात बुलंद करता है, कैटेगरी बुलंद करता है, लोगों में आपका वक़ार, आपकी इज्जत अल्लाह ताला बुलंद करता है। इसलिए इल्म हासिल करो, इल्म वाले बनो, ना कि जाहिल बनो। अपने आप को इल्म से आरास्ता और पैरास्ता करो, इससे अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी इज्जत और आपके वक़ार को बढ़ाएगा। नेक्स्ट, नंबर 16, कभी कभी सामने वालों की साजिशों को देखकर भी खामोश हो जाना चाहिए। आपको पता चल रहा है कि ये आया है, मुंह पर बड़ा अच्छा बन रहा है, पर ये साजिश करने वाला है, मेरे खिलाफ प्लानिंग करने वाला है, मेरे खिलाफ बातें करने वाला है, मेरे खिलाफ लोगों को उकसाने वाला है, बुराई करता है, गलत बोलता है। ठीक है, पता है, छुपा लो, फिर भी जान दो, माफ कर दो, जाने दो उसको उसके अमल के साथ। ऐसा कर सकते हैं आप। जैसे यूसुफ के सामने भाइयों ने कहा, रे ये चोर नहीं है, इसका भाई भी चोर था, ये अकेला चोर नहीं है, इसका भाई भी चोर था।
सुन रहे हैं और जिसको चोर बोल रहे हैं वही तुमको खाने पीने को दे रहा है, उसके बाद भी छुपा लिया। तो कभी कभी लोगों के हल्केपन को देखकर हमें हल्का नहीं बनना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, अल्लाह भरोसे कर देना चाहिए मामला। इससे अल्लाह ताला यकीनन बड़े बड़े बदले देता है। नंबर 17, अल्लाह दिल के हालात को जानता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन दिल के बातों को जानता है। वल्लाहु अअलमु बिमा तसिफून, अल्लाह ताला को इल्म है तुम्हारे इल्ज़ामात, तुम्हारे एतराज़ात, तुम्हारा बुरा बोलना, अल्लाह ताला को सब इल्म है, क्योंकि अल्लाह तो दिल के हाल जानता है ना। अल्लाह ताला, पता है जब आप अल्लाह से बात करते हैं ना, अल्लाह ताला डायरेक्टली आपको जानता है, आपके छोटे बड़े गम फिक्र परेशानी, ये टेंशन वो टेंशन, सब पता है उसको, सब पता है। इसलिए अपने रब के सामने खुल जाया करो, जब रब के सामने आओ ना खुल जाया करो, बंदों के सामने छुप जाया करो और रब के सामने खुल जाया करो, क्योंकि रब को तुम्हारे दिल के हालात भी पता है। नंबर 18, हालात बदलने में अल्लाह ताला का इख्तियार है। वो कल के कमज़ोर को आज का ताकतवर बना सकता है। ये भी बहुत बड़ी बात है जो आज के दौर में मोमिन को यकीन रखना चाहिए कि हालात बदलने की ताकत अल्लाह की है। वो कल एक कमज़ोर निहत्ता मासूम बच्चा जिससे कुएं में फेंका गया था, उसे वो अजीज़ मिस्र बना सकता है। क्या ताकत है अल्लाह की, क्या कुव्वत है अल्लाह की, क्या गलबा है अल्लाह ताला का। इस बात पर यकीन रखो कि वो कल के कमज़ोर को आज के ताकतवर को कल कमज़ोर बना सकता। साहब उसका इख्तियार है। तुमने छोड़ा था भाई को, तुमने फेंका था कुएं में कि जलील होगा, बर्बाद होगा, उठा लेंगे लोग, बेच देंगे, बन जाएगा गुलाम, और आज उस गुलाम के सामने तुम गुलाम बनकर खड़े हो। तुम खाना मांगने के लिए आए हो, तुम गल्ला मांगने के लिए आए हो। वो कब कमज़ोर को ताकतवर बना दे, ताकतवर को कमज़ोर बना दे। कभी तकब्बुर मत करो, बल्कि झुको और मांगो, क्योंकि अल्लाह के हाथ में सारे इख्तियारात हैं। नेक्स्ट नंबर 19, किसी के बहकाने पर कभी मत बहको। यानी अगर तुम कोई गुनाह पर ले जाना चाहता है, तुमको कोई गलत पर ले जाना चाहता है, तुम्हें कुछ छुपाना चाहता है, तुमसे गलत बता रहा है ना, तो बहकाने पर मत बहको। हर वरना होता है ना हमारे यहाँ, जैसे गुटखा खाने वालों के साथ लोग गुटखा खा रहे हैं, तंबाकू वालों के साथ खाने लग गए, सिगरेट पीने वालों के साथ पीने लग गए, चोर के साथ चोरी करने लग गए। इसलिए बहकाने वालों पर मत बहको। तुम ये देखो कि मेरा मकाम क्या है, मेरा मर्तबा क्या है, मेरा इल्म क्या है, मुझे अल्लाह ताला ने किस मकाम पर खड़ा किया है। इस बात का पासो लिहाज एक बंदा मोमिन को रखना चाहिए। ये कुछ पॉइंट्स थे तदब्बुर के ताल्लुक से जो आज आपके सामने आए। अब हमारा आखिरी पॉइंट है अमल। नंबर 1, दुआ की पाबंदी करो। दुआ बहुत मांगा करो, अल्लाह से जितनी ज़्यादा हो सके ना दुआएं मांगा करो। अल्लाह को पुकारो, अल्लाह से मांगो, अल्लाह ताला को जो जो तुम्हारा है ना दुआ बस मांग लिया करो अल्लाह ताला से। नंबर 2, लोगों की मदद किया करो। अगर अल्लाह ने ताकत दी है ना, पैसा दिया है, शोहरत दी है, कुछ भी दिया है, जैसे कर सकते हो, पैसे से, माल से, वक्त से, लोगों की मदद किया करो। नंबर 3, यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को पढ़ो, वो इबरत है। क्या इबरत है उसमें? बचपन में परेशानी, फिर बादशाह के घर परेशानी, फिर जेल की परेशानी, फिर अब आसानी। इस ज़िंदगी को पढ़ो, इसके अंदर अल्लाह ताला ने बहुत सारी इबरतें रखी हैं। नंबर 4, अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह हमें इल्म दे, सही इल्म दे। और रब्बी ज़िदनी इल्मा और रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ये दुआएं पढ़ा करो, इल्म की ज़्यादती की दुआएं पढ़ा करो, इल्म मांगा करो अल्लाह ताला से। और नंबर 5, बड़ी अहम चीज़ है, गुस्से पर कंट्रोल करना सीखो। गुस्सा से पता है आपका नुकसान करता है, गुस्सा आपके अलावा किसी और का नुकसान नहीं करता है, इसलिए गुस्से पर कंट्रोल करो। जान रहे हो ना वो क्या कर रहा है, फिर भी कंट्रोल करो। अल्लाह ताला इससे आपको दुनिया में भी और आखिरत में तो बहुत ही बड़े बदले देगा इंशाअल्लाह। आखिरत को संवार देगा, आसान बना देगा, कब्र को मुनव्वर कर देगा। आप गुस्से पर अपना कंट्रोल किया करो। तकरीबन ये बुनियादी चीज़ें थी जो आज आपके सामने मुझे रखना थी। इन्हीं बातों पर अपनी बात को मुकम्मल करता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ, ए इलाही मौला रब्बुल आलमीन, तो हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमा, कुरान से मोहब्बत की तौफीक अता फरमा, कुरान को समझने की तौफीक अता फरमा। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।